Hello everyone, this is Revati Rathi and today we are with a new topic called resistors and accumulators of microprocessor 8085. Guys, in the previous in my previous video you have seen about my pin configuration of microprocessor 8085. In that I hope you learn each and every small concept I try to narrate. You learn about that. With the help of this, today we are going to explain our next topic, resistors and accumulator. We are studying these topics because we need to study all these things in depth, because next we have to study architecture. That for architecture what will be the requirement, the short requirement we'll study, and then next time we'll combine all the things and we'll study the architecture, right? So without wasting time, we'll start. This is the resistors and accumulator. First of all, you can see the accumulator is here. The accumulator is here. This accumulator is represented with a letter A, and it is of 8 bit. The accumulator is such type where we can store our result. Every program result is stored inside the accumulator, and it is very necessary that when you stored your result, one of the resistor will be accumulator and other will be this out of this 6 general purpose resistors. So in short, you can rememorize कि accumulator is denoted with the letter A and it is of 8 bit, and final result of our operation is stored inside the accumulator A. Okay, now you can see all the types of resistor. There are 6 types of resistors. Basically in microprocessor there are 8 type of resistors. 2 W and Z resistors were there, but these are not general purpose resistors. These two are of microprocessor, but for the user there are the 6 types of resistors, B, C, D, E, H, L, and hence we can say that there are general purpose 6 resistors, B, C, D, E, H, L. Okay, now each register is of 8 bit. When you have to perform the operation which required 8 bit, then you can use a single resistors. And sometime if your operation required 16 bit, then at that time you should use a pair, B, C, D, E, H, L. You can't do like that. You can make a pair that I should able to make a pair. It is not uh, possible in this that you can make a pair of BE, BL. It is not. You can make only the pair of BC, DE, HL. These are already made pair inside the microprocessor, B with C, D with E, H with L. If in short you can required, these are all 6 general purpose resistors, and if we required 8 bit, then we can use a single one, and if we required 16 bit, then we can make a use of the pair. With the pair, this 8 and this 8 will complete a criteria of 16 bit, and this will use. You cannot use other pair, only you can use this respective pairs only. Okay, these are in this way these are the 6 types of the resistors. Then next one is your stock pointer. About the stock pointer, we are going to see stock pointer is denoted with SP, and it is of 16 bit. Stock pointer, it is one of the type of the pointer where we can stock pointer is of 16 bit. It is denoted with a letter SP, and it is denoted with a letter SP. And in the stock pointer, it is a type of memory location in read write memory called stock. Means in short, you can rememorize कि it is a type of memory pointer where a location of read and write memory कॉल्ड स्टॉक. जो भी आप मेमोरी में लिखोगे पढ़ोगे, वो जो भी आप मेमोरी में लिखते हो पढ़ते हो, उसका पूरा लोकेशन जो है वो स्टॉक पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है. इन शॉर्ट आप ध्यान रख सकते हो कि स्टॉक पॉइंटर जो है एक मेमोरी पॉइंटर की तरह वर्क करता है. इसको एसपी से डिनोट करते हैं. 16 बिट का होता है. जितना भी आप रीड राइट जो भी करते हो ना, रीड राइट, वो सबका सब ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो स्टॉक पॉइंटर के अंदर आता है. फिर उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर. इस प्रोग्राम काउंटर को हम लोग डिनोट करते हैं पीसी के साथ. प्रोग्राम काउंटर जो है वो 16 बिट का होता है. कितने बिट का होता है? प्रोग्राम काउंटर इज ऑफ 16 बिट, एंड प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है. प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर को हम पीसी से डिनोट करते हैं. प्रोग्राम काउंटर वर्क ये कि ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन करता है.
कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने का काम प्रोग्राम काउंटर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 10 एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हियर every instruction will be executed in a sequential manner and this work was done by our program counter। मीन्स नेक्स्ट मेमोरी में कौन सा लोकेशन फेच्ड होगा, दिस विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम काउंटर। तो आप एक बात जान सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर के हेल्प से हम लोग सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये बताता है कि नेक्स्ट अब कौन आएगा, नेक्स्ट विच मेमोरी हैज़ टू बीन फेच्ड, दिस वॉज टोलन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम काउंटर। शॉर्ट में रिमाइंड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशनल एकदम इंस्ट्रक्शन का परफेक्टली सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करने का काम पीसी करता है। पीसी इज प्रोग्राम काउंटर, इट इज़ नोटेड विद 16। इसका जो बिट है वो 16 बिट है और ये पीसी से डिनोट किया जाता है। एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियली करता है इंस्ट्रक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं डेटा बस है, एड्रेस बस है। अब डेटा बस का भी हमने देखा है कि माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार की बस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। उसी में डेटा बस होता है। डेटा बस हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, मल्टीप्लेक्स में 8 पिन्स थे। उसके ऊपर से हमें पता चला है कि ये जो डेटा बस है ये 8 लाइन्स का होता है। डेटा पिन्स जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, दोनों भी डायरेक्शंस के अंदर चल सकता है। ये कैसे बाई डायरेक्शनल है ये आप पढ़ोगे जब आप लोगों को आर्किटेक्चर बताया जाएगा। उस आर्किटेक्चर में आपका जो कॉन्सेप्ट है बाई डायरेक्शन का ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब 8 लाइन का तुम कॉन्फ़िग पिन से क्लियर कर चुके हैं। बाई डायरेक्शनल कैसे हो रहा है ये आप उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल कैसे हो पा रहा है, उसका वर्किंग बेस है। एड्रेस बस हमने देखा था कि एड्रेस बस क्या होता है। एड्रेस बस क्या होता है, ये क्या करता है, एड्रेस को ट्रांसफ़र करता है इन यूनिक बाइनरी पैटर्न जो सिर्फ अंडरस्टूड करता है, सामने का आईओ हो, मेमोरी हो, वो उसको अंडरस्टूड कर जाते हैं। उस स्पेसिफिक एड्रेस देने का काम ये एड्रेस बिट करता है। ये एड्रेस बिट 16 बिट का है। प्रीवियस पिन डायग्राम में हमने सीखा था 8 मल्टीप्लेक्स के 8 हायर ऑर्डर टोटल 16 बिट्स की एड्रेस लाइन्स बन रही थी। तो इन दिस वे 16 लाइन का एड्रेस बस बन रहा है। सो इन दिस वे मैंने आज आप लोगों को, और ये जो फ्लैग रजिस्टर्स है, फ्लैग रजिस्टर्स का एक शॉर्ट में बताती हूँ कि फ्लैग रजिस्टर्स 8 बिट का रजिस्टर्स होता है और इसमें 5 प्रकार के रजिस्टर्स आते हैं। ये हम वीडियो डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में आप लोगों को फ्लैग रजिस्टर का पूरा डिटेल बताया जाएगा। बस ये एक टाइप ऑफ रजिस्टर है जो 5 टाइप्स की है और उसमें 8 बिट इसका डेटा, मतलब 8 बिट्स फ्लैग रजिस्टर होते हैं और उसमें 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे शॉर्टली एक रिव्यू दे देते हैं कि एक्यूमुलेटर ए से डिनोट करते 8 बिट्स का होता है। इसमें 6 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, हर रजिस्टर 8 बिट का होता है। जनरल पर्पस के 6 बिट रजिस्टर्स है। अगर आप चाहो 16 चाहिए मुझे डेटा के लिए, मतलब कुछ बनाने के ऑपरेशन के लिए, तो आप पेयर्स का इस्तेमाल कर सकते। पेयर तोड़ नहीं सकते, पेयर रिस्पेक्टिवली बनी हुई है। स्टॉक पॉइंटर आपको बताया, एक मेमोरी पॉइंटर रीड राइट का जो भी ऑपरेशन स्टोर करता है, एसपी से डिनोट करते 16 बिट। सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर पीसी 16 बिट होता है और ये एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियली करता है। फिर उसके बाद डेटा बस, एड्रेस बस, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने स्मॉल कंसेप्ट को बताने का पूरा इसमें कोशिश किया है। सो प्लीज़ like and subscribe the video so that you will get a notification of my next video. So please like and subscribe this video. Thank you so much.